السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 7 ایسی عورتوں کی غلطیاں بتانے آئی ہوں۔ اللہ معاف کرے، اس میں اللہ میرے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو اسے مجھے بھی معاف کر دے اور مجھے صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ بہنوں کو بھی صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو پہ غور و فکر کریں اور سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں بتاتی ہوں پہلی غلطی کیا ہے۔ ہم لوگوں میں پہلی غلطی عورتوں میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے اچھی دنوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ کسی کا گھر بننا ہے تو ہم جلیں گے کہ اس کا، اور اس کی وہ ہم سے خوشی اگر کوئی مٹھائی بھی دینے آئے گی تو اس کے جاتے ہی ہم غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ 2 عورتوں کا قصہ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردار، ان کے منہ سے خون، تازہ خون اور گوشت کے دانتوں مسوڑوں میں سے تازہ خون اور گوشت کے ریزے نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا اور پیالے میں ان سے کیا کرنے کو کہا، کیا کری تو دیکھا تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے تھے ان کی الٹی میں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا کچھ کھایا ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ پیٹ جاتے ہی کسی نہ کسی کی جو کوئی ان کے پاس آیا، یہ کہیں گئیں، 4 عورتیں ملیں اور 2 عورتیں ملیں اور یہ غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے روزے کو، نماز کو، ہماری عبادت کو، ہماری خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو ہماری غیبت کھا جاتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، ہمارے پورے مہینے کے روزوں کو خراب کر رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے اور ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک پیاس رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ پیٹ بھوکا ہے، زبان سے پانی کے لیے ترس رہی ہے، لیکن ہم دماغ سے اور دل سے غیبت کرے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے روزہ سب بیکار ہو گیا اور گناہ لازم، نیکی برباد ہو گئی۔ دوسری غلطی سوشل میڈیا پر جو رہتی ہے۔ سوشل میڈیا پر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اسلامک باتیں بتا رہی ہیں، نہ ننگا بدن ہے، نہ سر ننگا ہے، نہ ہاتھ ننگا ہے، نہ پیر ننگا ہے، صرف اپنے ادب کے ساتھ میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں بتاتی ہیں، اللہ اور اپنے رسول کو سامنے رکھ کے باتیں بتاتی ہیں۔ 4 بہنیں بیٹھیں اور سیکھیں، جن سے نہیں آتی ہو انہیں بھی یاد آ جائے، جو بھول بھی گئی ہوں انہیں بھی یاد آ جائے۔ ایسے بدنوں کو ہم روزے میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسکرین ہمارے بیڈ روم میں بھی آ چکی ہے، لے کے اپنے بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں موبائلوں کو، ڈانس کر رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے ہیں، سارے ہمارے روزوں کو خراب ہو گیا، پورے دن کی محنت۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے میری بہنوں ہمیں اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے بدن جو کپڑا ہمارا لباس ہے، اس لباس کو ہم اپنا تن ڈھکنے کے لیے بنایا ہے، اس کی نمائش کے لیے نہیں بنایا اس کی۔ شرم کس چیز کو، حیا کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کی کہتے ہیں، جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ہماری حیا ہمیں جنت میں لے جائے گی، لیکن ہم دنیا میں بربادی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ نظر ڈل جاتی ہے ہماری، جو بالکل اندر سے بھی ننگا نظر آتی ہیں اور باہر سے تو کچھ کہنے ہی نہیں ہے۔ ایک باڈی پارٹ ایک ہمیں ایسا لگتا ہے، پتہ چل رہا ہے یہاں فلاں چیز ہے، وہ جسم کے اوپر یہاں فلاں چیز ہے، ہر پارٹ نظر آتا ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے کو بچانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ہم اپنا برقع بھی ادب کے ساتھ میں، زیادہ ٹائٹ نہ ہو برقع، ڈھیلا سلوانا چاہیے اور لوز ہونی چاہیے ہر چیز ہماری۔ اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو کسی کی بھی نظر پڑ جائے، ہمارا کوئی جسم کے پارٹ پتہ نہیں چل سکتا۔ تیسری چیز ہے میری بہنوں، جو ہماری چھت پر چل کر چھت ہے، جس کی پرورش میں ہم پلے ہیں، جو ہماری چھت ہے، جو ہماری اصل زندگی کی چھت ہے، ہمارے والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہمارے والدین ہم سے بات کرتے میں ڈرتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں۔ ذرا ماں باپوں نے کچھ کہا، فوراً بچے ایسے آتے ہیں جیسے آنکھیں نکال کر آتے ہیں، جیسے ہم کوئی چھوٹا بچہ ہے، ہم نے کوئی کام خراب کر دیا ہے والدین نے، اس کی وہ تلخ مزاج سے
मना फरमाया है वालिदैन के लिए। मेरी बहनों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इस पर आमीन कहा था कि जिसने पूरे महीने के रोज़े पाए और अपने वालिदैन की बख्शी, अपने लिए वालिदैन की दुआ नहीं ले सका, अपने वालिदैन को खुश नहीं कर सका, अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका, ये रहमत का अशरा चल रहा है। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ, रहमत का अशरा है, इसमें जितनी रहमत लूटनी है लूट लिए। इसमें आपको घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आज 8वां रोज़ा हो गया है। आप लोगों को भी अपने रोज़े की भी फ़िक्र करें और वालिदैन की कद्र करें। सास ससुर हों तो उनकी कद्र करें, अपने बड़ों की कद्र करें, अपने महल्ले पड़ोस वालों की भी कद्र करें। ये नहीं कि हम एकदम से हुस्न सलूक क्या बताया है। अगर माँ बापों को भी एक नज़र अच्छी नज़र से देख लें खुश होके, तो एक हज का सवाब है। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में इतना बड़ा बड़ा सवाब रख दिया है और हम बिल्कुल बेदार हो गए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, बस 1 महीने के मुसलमान बन जाते हैं। हर चीज़, आँखों में भी आंसू होंगे, हर चीज़ हमारी पाबंदी से चलेगी। मेरी बहनों, अपने वालिदैन के लिए हुस्न सलूक बता दिया है। वालिदैन की खिदमत करो, उनसे खुश होके बोलो। ऐसा वालिदैन से हमें डरना चाहिए, हम वालिदैन हमसे न डरें। तो ये हो गई इस 7 मिसालों में से ये 3 मिसालें हो गई। अब मैं आपको चौथी मिसाल बताती हूँ। मेरी बहनों, हमसे बहुत सी खातून आने वाले मुकम्मल तरीके से पाक खाना हराम, पाक खाने की पता ही नहीं है। कैसा खाना खा रहे हैं हम, कैसे रोज़ा अफ्तार रहे हैं हम, कैसी चीज़ हैं, कैसे हमारे मियाँ कमा के लाए, कैसे हमारे बच्चे कमा के लाए। पहली औरतें जो होती थीं वो साफ कह देती कम लाना लेकिन हलाल लाना। आजकल हमें पता ही नहीं है। खूब फल खा रहे हैं, खूब मेवाएं खा रहे हैं, खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये पता नहीं कैसी आ रही हैं। अरे हलाल रोज़ी में तो पेट भर जाए वही बहुत है। इतना तो सिर्फ हराम का ही हो सकता है, 2 नंबर का काम ही हो सकता है। इसलिए ताकीद करें अपने घर में कि हम हलाल रोज़ी से ही रोज़ा अफ्तार करेंगे, हम अपना रोज़ा ज़ाय नहीं करेंगे। हमें अगर रोटी सालन से भी मिल जाए वो भी बहुत है, रोटी हमें चटनी से मिल जाए वो भी बहुत है। हमें आखिरत में अल्लाह को मुँह दिखाना है, हम जवाब देना है। नामाए आमाल में से हमारी नेकियां घट ना जाएं, हमें अपनी नेकियां बढ़ानी हैं। हर मुश्किल काम को आसान करना है। अगर हलाल रोज़ी खाएंगे, अगर हलाल लिबास पहनेंगे, हलाल खाना खाएंगे, हलाल पानी पिएंगे, सुन्नतों के तौर पे चलेंगे, पानी सुन्नत की अदायगी में पिएंगे, तो मेरी बहनों, हमें हलाल हराम की पहचान होनी चाहिए। हम पे नेकियां बर्बाद, गुनाह लाजिम हो गए, पूरे महीने के रोज़े ख़राब हो गए, हमारे भूख प्यास सब ख़त्म हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं है हराम क्या चीज़ है, हलाल क्या चीज़ है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको तफसील से समझाऊंगी। आप लोग और फिक्र से इस वीडियो को देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवी जो गलती है वो सीने में छुपा हुआ तेज़ धार वाला क्या है, कीना और बुग़्ज़। छुपा हुआ तेज़ धार वाला कीना और बुग़्ज़ है। हम हर किसी से छोटी छोटी बातों पे बोलना छोड़ देते हैं। हमें किसी बात की ये है ही नहीं, इसने ज़रा हमसे कुछ कह दिया, जाइए मैं नहीं बात कर रही, मैं आ गई हैं वो हमारे घर पे, नहीं मत आप क्यों आ गई हमारे घर पे, हमने तो आपसे मैं तो इससे बोलती नहीं हूँ। बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं तो उससे बात ही नहीं करती, मैं तो उससे कीना तो कहती नहीं है, लेकिन ये मैं उससे बात नहीं करती, मेरी उससे बातचीत नहीं है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, मेरा उससे ये नहीं हुआ, मेरा उससे। तो मेरी बहनों, इस कीने को सबसे पहले ख़त्म कर लो। तेज़ धार वाला कीना है, तेज़ धार वाला बुग़्ज़ है। इस बुग़्ज़ को दूर कर दो, इस कीने को दूर कर दो। हमसे किसी की बोलचाल नहीं है, अस्सलाम वालेकुम ही कर लो, 10 नेकियां आपको फ़ायदे में मिलेंगी। लेकिन सामने वाले को भी ये चाहिए, ये मुझसे नहीं बोल रही, मैं इससे सलाम कर लूँ, अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान के लिए सलाम सबसे बड़ी सलामती है। हमने अस्सलाम वालेकुम कहा, आप या वालेकुम अस्सलाम कह दिए, तो हमारी ज़िंदगी की बढ़ोतरी बन गई, ज़िंदगी बढ़ गई, सलामती में आ गए। उन्होंने हमें सलामती दे दी, हमने उन्हें सलामती दे दी। मेरी बहनों, कीना बुग़्ज़ को ऐसे ख़त्म करिए।
आसान ज़बान में बताती हूँ, आसान चीज़ों में समझाती हूँ। आप लोगों को कीना बुग़्ज़ किसी से न रखना। इस दुनिया में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब फुर हो जाना है, कब चले जाएंगे, कब क्या हो जाए पता ही नहीं। अभी हम बैठे हैं, अभी पानी पी रहे हैं, खाना खाया है, रोज़ा है, पता नहीं क्या बीमारी हो जाए, पता नहीं क्या हो गया। ज़रा सी अरे अभी तो ठीक, पता नहीं क्या हो गया। मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, हमें ये बातें करनी पड़ जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, कीना बुग़्ज़ से दूर रहें। छठी गलती मेरी बहनों, छठी गलती बहुत ही औकात में कटी हुई है। तुम की इसकी बुनियाद, उसकी बुनियाद का क्या है, वो है नफिल नमाज़ें। मेरी बहनों, हमने नफिल नमाज़ों को तहज्जुद गुज़ार हैं, चाश्त गुज़ार हैं, इशराक गुज़ार हैं, अवाबीन गुज़ार हैं, और भी नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन हमने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते हम ऐसे सोए हमारी फ़र्ज़ कज़ा हो गई, हमारी फ़र्ज़ कज़ा हो गए। उससे पहले सबसे पहले अल्लाह ने बता दिया है कि सबसे पहले फ़र्ज़ होंगे, उसके बाद में हर इबादत का हिसाब लूँगा। जिसके फ़र्ज़ पूरे होंगे, जिसके फ़र्ज़ों में कुछ कमी हुई, तब नवाफिल से मैं पूरा कर दूँगा। जब हमारे फ़र्ज़ ही पूरे नहीं होंगे तो नवाफिल का मैं कुछ नहीं करने वाला। इसलिए पहले फ़र्ज़ों को अदा करो, उसके बाद में नवाफिल पढ़ने हैं, नफिल नमाज़ें पढ़नी हैं। कितनी भी नफिल नमाज़ें पढ़ लें, तौबा की पढ़ लें, सफ़र की पढ़ लें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हाजात की पढ़ लें, लेकिन सबसे पहले 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। उसके बाद में तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, और रमज़ानों में अपनी क़ज़ाए उम्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ करेगा, इंशाअल्लाह हमारे काम पूरे हो जाएंगे। 7वीं गलती जो अक्सर रमज़ानों की गलती, आपका रमज़ान खूब अलमारी में बंद है, बंद चाबी अलमारी में ही बंद है हमारा। अल्लाह को एक भी चीज़ ऐसी पसंद नहीं आती कि हमारे रमज़ानों में, जो हम रमज़ानों में तेरी मेरी बाई तवाई में जो लगे रहते हैं। ये मैं जब ज़्यादातर अपनी बहनों के लिए बातें बताती हूँ। मर्द हजरात तो अपने काम में लग जाते हैं, कभी कभी बुराइयों में आ जाते होंगे, लेकिन मेरी बहनें, औरतें सबसे ज़्यादा बुराइयों की जड़ हैं, बुराइयों की कुंजी हैं। सिर्फ यही बात मैं आपको समझाने आई हूँ, हमें पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। पुलसरात ऐसा रास्ता है जो करंट की तरह से निकलना है। जो नेक बंदे होंगे वो उस पे से भी निकल जाएंगे, और जो घुटनों के बल भी चलेंगे। मेरी बहनों, पुलसरात से आसानी की ज़िंदगी, आसान रास्ता हो जाए पुलसरात का। सबसे पहले दुआ भी करनी चाहिए, आमाल नामा दाहिने हाथ में देना। ए परवरदिगार, आमाल नामा दाहिने हाथ में हो, पुलसरात से करंट की तरह से निकल जाएं, हम दीन के दाई बन जाएंगे। इंशाअल्लाह हम दीन के दाई बन जाएंगे, हमें अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ कि इस अशरे की दुआ, हमारा रहमत का अशरा जा रहा है, इस अशरे की दुआएं ज़रूर पढ़ें। असर के टाइम से लेकर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में हमें सबसे पहले सुबह की दुआएं, जो भी दुआएं हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताई थी, या वासे अल-फज़ल पिटी असर के बाद में पढ़नी चाहिए, या वासे अल-मग़फ़िरत सहरी में पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा रहमनी सारे दिन इस अशरे की दुआ है, ये पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपसे रुख़्सत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि और बहनों को भी रोज़ों में अच्छी अच्छी बातें पता चलती रहें, अच्छे अच्छे काम पता चलते रहें, एक दूसरे की गीबत को छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।